Hello all. I welcome you to the 10th lecture of this welding process series. My name is Divyanshu Pandey. I've done my master's from IIT Kanpur and currently I'm working under Techie project as an assistant professor in Engineering College Jhanawar. So in welding, we have covered most of all the topics of welding. Now we are covering the different kind of weldings which we use in the industries. So in last lecture, we have seen the TIG process and SMW process. Now we are going to discuss all other remaining welding processes. And after completion of this, we will start with solid state welding process and resistance welding process. So now we are going to discuss about MIG process or gas metal arc welding process. So in gas metal arc welding process, basically we use consumable electrode first of all. And in previously we have discussed GTAW, that was gas tungsten arc welding, that was a non-consumable electrode process. And in this process we are going to use consumable electrode. So metal यहाँ पर जो है metal means consumable electrode will be used in GMAW welding process. Okay, again, here also we use inert gas. That's why we also call this MIG process metal inert gas welding process, as well as we also call it somewhere in metal active gas welding process. Okay, so now heat for again for fusion heat is generated because of arc only, and here we use consumable electrode. एंड यहाँ पर आपको जो भी इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है तो आपको एक्स्ट्रा अलग से आपको वायर की जरूरत नहीं है, फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं है. Okay, so inert gas is used as a cooling medium for the arc and the molten weld tool. And this process basically is automatic or semi-automatic mode. We use generally a semi-automatic or automatic mode in this uh, metal arc welding process because we need to feed metallic rod on a continuous manner. So that's why it is not possible in a manual way. That's why it is used in semi-automatic and automatic modes only. Okay, so this is the setup of your GMAW process. So again, a little bit similar setup, but the different part is this feeding mechanism. So here we use a servo feeding mechanism for feeding of your electrode. So this is your diagram, which is this portion is covering your gas, inert gas. तो इस सिलेंडर में आपका इनर्ट गैस होता है और यहाँ पर दिस इज योर reel, wire reel you can say, and this wire is continuously feeded with the help of servo mechanism, and this is your drive roll जो कि push करता है आपके वायर को आगे की तरफ, and this is your contact and guide tube. So this contact and guide tube is generally connected with your power supply, and this guides your metallic rod towards the workpiece, and this is your workpiece, and this whole setup is also known as a welding gun. This part, welding gun. Now there is a control system which controls your wire and gas. So this is that your control system. Now if you want to see this guide tube and contact setup, so it can be seen through this diagram. So this is your contact tube. Contact tube is connected with your contact tube is basically a conductive made of conductive material, and this thing is connected with your power supply. And between this your electrode used to pass. तो यहाँ से आपका सर्किट कंप्लीट होता है कॉन्टेक्ट ट्यूब से, और इसके बिटवीन से बीच में से आपका मेटेलिक रॉड जो है वो पास होता है. एंड दिस इज योर सील्डिंग गैस विच इज कमिंग बिटवीन दिस पैसेज. ये जो आपका कॉन्टेक्ट ट्यूब है और आपका जो ये गन है, वेल्डिंग गन है, उनके बीच में एक स्पेस होता है. वहां से आपका दिस स्पेस से आपका सील्डिंग गैस यहाँ पर आता है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे इस रीजन में सील्डिंग प्रोवाइड कराता है. Okay, so again, another diagram is there also to explain this part. So this is your contact tube. यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर गैस नोजल है, इन बीच से आपका गैस आएगा बिटवीन आपके कॉन्टेक्ट ट्यूब और आउटर सरफेस ऑफ गन के बीच में जो एनुलर स्पेस है वहां से आपका सील्डिंग गैस आता है, जो कि सील करता है, जो कि एक्चुअली से आपको कवर करता है आपके आँख को. एंड बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है जैसे टीआईजी में था. एंड दिस सील्डिंग गैस बेसिकली अवॉइड्स contamination and all reaction which can occur if your this molten pool get in contact with surrounding gases. तो ये सारी चीजें यहाँ पर
बच जाती हैं विद द हेल्प ऑफ शील्डिंग गैसेस। ठीक है, तो ये कुछ सेटअप है यहाँ पर, ये चीजें जरूरत होती हैं जीएमएडब्ल्यू में, वेल्डिंग पावर सोर्स, वेल्डिंग टॉर्च, वायर फीड मैकेनिज्म, शील्डिंग गैस एंड ऑल। तो ये चीज वही है, कॉमन है, कुछ एक ही जो डिफरेंट पार्ट था जहाँ पर यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रोड, वहाँ पे जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड था उसके जगह पर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मेटेलिक वायर पूल। Okay, now what is the principle of operation of this GMAW GMAW welding process? So the same principle here also, we want to ignite the arc, but before ignition of arc we check the gas and water, all the cooling, water is used for cooling purpose and gas is used for chilling. So इसको पहले हम लेवल वगैरह चेक कर लेते हैं, then proper current and wire speed is also set and the electrical connection are ensured, and तब हमारा बात आती है आपके आर्क को इनिशिएट करने की। So there are different method we use for initiation of arc, जो कि हमने प्रीवियस पीआईजी में भी डिस्कस किया था। तो एक तो मेथड होता है जिसमें आप सिंपली इलेक्ट्रोड को टच करा देते हो जॉब से और फिर इलेक्ट्रोड को दूर ले जाते हो एंड देन अगेन मूव फॉरवर्ड एंड यू स्टार्ट वेल्डिंग ऑपरेशन। तो एक तो ये मेथड होता है। उसके बाद दूसरा मेथड होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोड को जॉब के अगेंस्ट में स्क्रैच करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्रैच अगेंस्ट द जॉब, एंड यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ स्ट्राइकिंग द आर्क। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है जिस तरीके से आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। सो मोर और लेस सिमिलर प्रोसेस ही होता है अगर आप इलेक्ट्रिक आर्क की बात करें तो। वी नीड टू इनिशिएट द आर्क समहाउ। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन योर वर्कपीस एंड जो वेल्डिंग टॉर्च है उसके बीच का डिस्टेंस लगभग 10 to 12 mm होता है जनरली, एंड द आर्क लेंथ इज बिटवीन 1.5 to 4 mm इन केस ऑफ जीएमडब्ल्यू। सो ये ऐसा मेंटेन रखते हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। Now, what are the operating variables? So, operating variables, this your welding current, polarity, arc voltage, welding speed, these are the common one। ये सब में कॉमन होगा, और कुछ चीजें और यहाँ पर बढ़ जाती हैं। लेंथ ऑफ स्टिक आउट जो हमने डिस्कस किया था, जो एक्सेस जो इलेक्ट्रोड, जहाँ पे इलेक्ट्रोड जो आपके टावर से बाहर आता है, दैट इज योर लेंथ ऑफ स्टिक आउट। इलेक्ट्रोड डायमीटर, इलेक्ट्रोड ओरिएंटेशन, शील्डिंग गैस composition, gas flow rate, wire feed speed। So these are all the ऑपरेटिंग वेरिएबल्स। इनके वेरी करने से आपका जो ऑपरेशन है उसके फीचर्स चेंज हो सकते हैं, एंड जो भी आपका वेल्ड प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ऑपरेटिंग वेरिएबल्स। So there are different effect of this operating variable। So more or less करंट के बारे में हमें बताया कि अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो डिपोजिशन रेट बढ़ जाएगा, और आपका पेनिट्रेशन एंड इंक्रीज इन डेप्थ एंड वेड्थ ऑफ द वेल्ड पेनिट्रेशन, ये देखा जा सकता है अगर आप करंट बढ़ाते हैं तो। ठीक है, ये चीज हमें पता है क्योंकि करंट से ही आपका डिपोजिशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हमें पता है, और अगर डिपोजिशन रेट बढ़ेगा तो आपको वेल्ड की साइज तो बढ़ेगी। Now, what will happen in case of polarity change? So basically, in case of this GMAW, we use DCEP. DCEP इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इट मींस इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड पे ज्यादा हीट जनरेट हो। दैट्स व्हाई यूज डीसीईपी है। ठीक है, सो डीसीईपी के केस में ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो ऑलरेडी हम कुछ तो डिस्कस कर चुके हैं, कुछ यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। स्टेबल आर्क, स्मूथ मेटल ट्रांसफर, स्मूथ मेटल ट्रांसफर क्योंकि हीट ज्यादा यहीं डेवलप हो रहा है तो मेटल ट्रांसफर स्मूथ तो होगा ही। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, एंड यहाँ पर ज्यादा हीट आपका और पॉजिटिव पोलैरिटी पॉजिटिव भी आपका इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर ऑक्साइड जो फॉर्मेशन हो जाता था हमारे वर्कपीस पे उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती। दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट assist in removal of oxide from plate। Alternative current seldom used in gas metal arc welding, for some use for welding of aluminum। तो बोला गया है कि भाई जो एसी है, जैसे यहाँ पर डीसी ज्यादातर यूज होता है जीएमएडब्ल्यू में, एसी का यूज काफी कम देखा गया है, और अगर यूज होता भी है एसी सेटअप तो दैट इज ओनली यूज फॉर एल्यूमिनियम टू फॉर कैथोडिक क्लीनिंग एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ दैट ऑक्साइड लेयर। इसी के लिए एल्यूमिनियम के केस में जो हमने पहले डिस्कस कर रहा था लास्ट लेक्चर में कर रखा है, उसी के लिए केवल एसी का यूज होता है, बाकी के लिए एसी यूज नहीं होता है इन केस ऑफ जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस। ठीक है, नाउ अगेन इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन की बात जो मैं बात कर रहा था, तो ये देखिए ये आपका कॉन्टेक्ट ट्यूब है। अब इससे और आपका ये जो इलेक्ट्रिक आर्क जहां से जनरेट हो रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज योर इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन। तो इस पे भी काफी चीजें डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन का लेंथ अगर ज्यादा हो जाता है तो एक तरीके से प्री हीटिंग होती है इलेक्ट्रोड की, एंड बिकॉज ऑफ प्री हीटिंग हीट ज्यादा तो आपका इलेक्ट्रोड खा जा रहा है, तो जो आपका पेनिट्रेशन अमाउंट है, जो पेनिट्रेशन अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, तो जनरली जो स्टिक आउट डिस्टेंस है ये यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है इतना वेरी होता है, इसके बीच में हम रखते हैं, राइट।
ओके, नाउ सील्डिंग गैस एंड कंपोजिशन। सो सील्डिंग गैस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अलग अलग मेटल के लिए हम अलग अलग सील्डिंग गैस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने लिख रखा है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ सील्डिंग गैस। तो स्टील के लिए हम CO2 यूज करते हैं, या फिर आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ यूज करते हैं। एंड नॉन फेरस के लिए जनरली वी प्रेफर आर्गन एंड हीलियम। सो सील्डिंग गैस जो प्लाज्मा जनरेशन होता है, और जो एक एक तरीके से हीट जनरेशन होता है, जो वेल्ड क्वालिटी है, उस पे इफेक्ट पड़ता है सील्डिंग गैस का। इसीलिए कुछ पर्टिकुलर सील्डिंग गैसेज होते हैं जो पर्टिकुलर मेटल के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली फॉर स्टील वी यूज CO2 और आर्गन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर, और फॉर नॉन फेरस मेटल वी यूज आर्गन और हीलियम। ठीक है। So sealing gas and its flow rate have a substantial effect on the following parameters। तो इस पे आपका इफेक्ट जो जो कि मैंने बताया, आर कैरेक्टरिस्टिक पे, आपका मेटल ट्रांसफर पे, क्योंकि जो आपका प्लाज्मा है उसी के थ्रू मेटल ट्रांसफर होता है। तो अगर प्लाज्मा की प्रॉपर्टी चेंज होगी तो आपका मेटल ट्रांसफर का भी मे भी वेरिएशन आ सकता है, राइट। एंड उसी पे डिपेंड करता है पेनिट्रेशन पे। So, सारी चीजें, ये जो चीजें हैं मोर और लेस डिपेंड करती हैं प्लाज्मा जनरेशन पे, जो कि आपके, और प्लाज्मा जनरेशन डिपेंड करता है आपके एयर, जो भी आपका गैस प्रेजेंट है। तो इसलिए जो शील्डिंग गैस है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो दिस स्लाइड वाज ऑल अबाउट योर शील्डिंग गैस। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखना है कि भाई स्टील के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, काफी डिटेल में हो जाएगा ये चीज है, बट आइडिया के लिए इसको आप ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। देन नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस GMAW प्रोसेस। सो यहाँ पर क्या है कि एक तो आप कंटिन्यूअस फीड कर रहे हैं वायर, सो ये थोड़ा सा प्रोसेस तेज हो जाता है। इट इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू योर टिग और योर सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, क्योंकि कंटिन्यूअस फीडिंग हो रही है यहाँ पे वायर की, तो थोड़ा सा प्रोसेस तेज हो जाता है। कंटिन्यूअस फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दस रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप ऑल्सो, ये भी है, जो कि हमारे SMA-W में क्या था, बार बार इसे स्टार्ट करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है, आपको आपको टच कराना पड़ता है इलेक्ट्रोड को। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है। और अगर देखा जाए तो कमर्शियली ऑल टाइप्स ऑफ एलॉय एंड मेटल कैन बी वेल्डेड विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। ऑल पोजीशंस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ GMAW। ये भी डाउन हेड है या फिर ओवर हेड है, ये सारी चीजें इससे हो सकती है। ठीक है। डिपोजिशन रेट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर आप एक तरीके से फीड वायर ही यूज कर रहे हैं, तो डिपोजिशन रेट तो ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है। स्पीड ज्यादा होने का रीजन ऊपर आपने देख ही लिया। फ्लक्स यहाँ पे यूज होता नहीं है, तो इसके लिए जो स्लैग रिमूवल है उसकी प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे। और दिस प्रोसेस इज बेसिकली यूज इन ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मोड। तो मैकेनाइज जो करना आसान है, क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं दोनों प्रोसेस में यूज होता है। ओके, देर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो। सो लिमिटेशंस की अगर बात करेंगे तो पहली बात तो ये थोड़ा सा लेस पोर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप वी आर यूजिंग वायर फीडर ऑल्सो, एक सर्वो मैकेनिज्म अलग से यहाँ पर आ गया वायर फीडिंग के लिए। तो इसलिए पोर्टेबल थोड़ा सा कम है, एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि आप एक तरीके से ऑटोमेटिक सेटअप है, वायर फीडर है आपका, एक तरीके से एक आप इनर्ट गैसेस का भी सेटअप रख करके उसके बाद दोनों का कंट्रोल सिस्टम, तो कुल मिला के अरेंजमेंट इसका थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। Okay, and this process is more complex if you compare this in tungsten inert gas or submerged metal arc welding। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ओके, अब थोड़ा सा कोई नैरो रीजन है, कोई कंजेस्टेड पोर्शन है, तो वहां पे थोड़ा सा GMAW के थ्रू वेल्डिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि आपको अगर आप सिंपल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग देखे, स्टिक वेल्डिंग देखे, तो उससे आप इजीली कॉर्नर वगैरह कर सकते हैं वेल्ड। तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती है। उसके बाद शील्डिंग के लिए ये भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई टॉर्च को ज्यादा दूर नहीं रख सकते हैं आप, शील्डिंग के लिए थोड़ा सा पास रखना होगा। और एक चीज और है कि ज्यादा थिन मटेरियल के लिए आप जीमेड इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो 5 mm के से ज्यादा के लिए ही थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है इसको। जबकि आप TIG में आपने देखा होगा कि थिन मटेरियल के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, एंड अगेन आप इसको अगर चाहो कि भाई इन्वायरमेंट में यूज कर लो सिंपल विदाउट, मतलब एयर में यूज कर लो, सिंपल खुले इन्वायरमेंट में यूज कर लो, तो क्या होगा कि आपका जो शील्डिंग गैसेज है वो उसमें ड्राफ्ट एक तरीके से वो डिफ्लेक्ट होने लगेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आउटडोर में ये वेल्डिंग ऑपरेशन यूज नहीं हो सकता है। इसके लिए एयर फ्लो वगैरह थोड़ा कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। तो ये थी आपकी लिमिटेशन GMAW की, और इसके एप्लीकेशन आपका सारे एल्यूमिनियम एलॉय के लिए, मैग्नीशियम एलॉय, ऑलमोस्ट सारे एलॉय और फेरस के लिए, फेरस मटेरियल के लिए ये अलग अलग जगहों पर यूज होता है। ऑटोमोबाइल और प्रेशर वेसल बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में रेफ्रिजरेटर पार्ट के भी पार्ट इससे बनाए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर GMAW। ओके, तो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बीच में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी एक इंट्रोड्यूस कर लिया, जिससे कि ये पूरा लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग ना हो, क्योंकि जब हम वेल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि सब कुछ
थ्योरी बेसिस पे चल रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये ऑलरेडी हम कई बार इस पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं। द मेजर डिफिकल्टी ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज ड्यू टू इट्स। तो मतलब एल्यूमिनियम को जब वेल्डिंग करते हैं तो प्रॉब्लम किस वजह से ज्यादा आती है, कौन सा रीजन है? तो हमने देखा था कि भाई जब हम एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते हैं तो वी प्रेफर एसी सेटअप, ताकि जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू, वो ब्रेक ब्रेक हो सके, वो ना हो पाए। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है कि भाई एक तो बड़ा ही रिएक्टिव मेटल होता है और बड़ा जल्दी ऑक्साइड बना लेता है, जो कि काफी हार्मफुल होता है और इंक्लूजन फॉर्म हो जाता है आपके सरफेस पे। तो इसीलिए पहला वाला जो ऑप्शन है, हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस इज द मेजर डिफिकल्टी बिहाइंड द वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो पार्टी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एमआईजी का अभी पढ़े ही है, तो एमआईजी पे एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। सो अ वेल्ड इज मेड यूजिंग एमआईजी वेल्डिंग प्रोसेस विद द फॉलोइंग वेल्डिंग पैरामीटर्स, where current is 200, voltage is 25 volt, welding speed is this, wire dia is this, wire feed हो रहा है इस रेट से, thermal efficiency is this, and now find the heat input per unit length of the weld in kilojoule per centimeter. And second part, this question is asking the area of cross section of weld bed in mm square. ठीक है, तो ये दो पार्ट यहाँ पे पूछा गया है। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट के लिए देखते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द हीट इनपुट, राइट? सो हीट इनपुट क्या होगा? हीट इनपुट, हीट इनपुट आपका पावर सोर्स से ही तो मिल रहा है। सो पावर सोर्स आपका क्या जनरेट करेगा? 200 मल्टीप्लाइड बाय 25। इतना वॉट तो आपका पावर पावर सोर्स दे रहा है, या फिर जूल पर सेकेंड दे रहा है, राइट? और जब हम हीट इनपुट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? आपका जूल, किलो जूल पर मीटर पर सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा है किलो जूल पर सेंटीमीटर, सो किलो जूल पर सेंटीमीटर हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर आपको वेल्डिंग स्पीड से इसको डिवाइड करना होगा, राइट? सो यहाँ पर 200 एम्पियर और ये 25, और इसके बाद आप इसको, और किलो जूल में पूछा गया है तो 1000 multiplied by 18, which is your welding speed. Now, one thing is also given here, the thermal efficiency. So thermal efficiency के बारे में हमने पढ़ा है, thermal efficiency क्या होता है, राइट? तो efficiency आपको 65% दे रखा है। मतलब पूरा का पूरा आपका जो हीट है, जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर हीटिंग के लिए नहीं मिल रही है, सब कुछ यहाँ पर मेल्ट डाउन करने के लिए नहीं मिल रहा है, 65% ही मिल रहा है। सो यू विल से दैट भाई यहाँ पे बस इतना पोर्शन ही मिल रहा है। सो यू विल find out the 65% of the total heat which is available for melting purpose. तो यहाँ से कैलकुलेशन से जो भी आंसर आएगा वो आपका हीट इनपुट पर सेंटीमीटर होगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलता है आंसर इसका जो आएगा। एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि जो यहाँ पर 18 मैंने यूज किया था, 18 का यूनिट, यहाँ पे यूनिट का बड़ा ध्यान देना होता है, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पे था सेंटीमीटर पर मिनट, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 18 पुट कर दिया, और जबकि आपका आउटपुट जो आंसर तो देना है वो किलो जूल पर सेंटीमीटर में देना है। एंड द पावर एट द यूनिट ऑफ योर पावर इज जूल पर सेकंड। तो सेकंड सेकंड को कैंसिल आउट करने के लिए आपको 18 जो है ना, 18 सेंटीमीटर पर मिनट, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए न्यूमरेटर में आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 60। थोड़ा सा साफ सुथरा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? तो एच इन इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 25, दिस इज योर पावर, और इसका 65% तो हम निकाल ही रहे थे, एंड दिस वाज डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 18। ओके, अब ये 18 जो है इसको आप 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको पर सेकंड निकालना है। तो एट द एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इसको हटा ही दो। ओके, सो फाइनली वी विल गेट 200 मल्टीप्लाइड बाय 25 multiplied by 65 multiplied by 60 divided by 1000, 18 multiplied by 100। ठीक है, अब इसका आप काट पीट करो यहाँ पे जरा। ओके, तो काट पीट करो, मैं थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करता हूँ। इसका कैलकुलेशन है नहीं मेरे पास, आंसर कितना आएगा।
ओके 265, तो आपको भी सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। So finally you will get answer 10.833 किलो जूल पर सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। यहाँ पे आपने हीट इनपुट निकाल लिया पर सेंटीमीटर। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब हमें भी इस पे क्वेश्चन भी कर रखा है। जब हम पढ़ रहे थे अबाउट एफिशिएंसी एंड ऑल, उस समय हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, अब एक पार्ट और है इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेल्ड बेड इन mm²। तब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये पर्टिकुलर एमआईजी का क्वेश्चन हो जाता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। सो फीडिंग दे रखा है आपका, इस रेट से वायर फीड हो रहा है, ये दे रखा है, वायर का एरिया दे रखा है, एंड आपका वेल्डिंग स्पीड दे रखा है। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग इन क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट वेल्ड बेड एरिया। ठीक है, तो हमें पता है भाई कि जो जितना वायर फीड हो रहा है, जिस रेट से, जिस वॉल्यूम रेट से वायर फीड हो रहा है, उसी रेट से वो डिपॉजिट भी होगा। मास तो कंजर्व ही रहेगा, मास तो गायब होगा नहीं कहीं। सो हमें क्या करना है, हमें मास कंजर्व करना है। ठीक है, सो इनिशियली आपका वायर डाया दे रखा है, तो कितना एरिया वायर का हो जाएगा, पाई। और ये देखिए mm² में ही पूछा है, तो सब कुछ में ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज द एरिया ऑफ योर वायर। Okay, now this wire is fed with this rate 4 मीटर पर मिनट। ठीक है, 4 मीटर पर मिनट। तो अब देखिए यहाँ पर ये 4 मीटर में है और ये सब कुछ में आपका एरिया निकालना है, तो 4 को आप में लिख दीजिए, तो हो जाएगा 4000। और मीटर में ही रहने देते हैं, सॉरी मिनट में ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे वाला भी वेल्डिंग स्पीड में मिनट में दे रखा है। तो ये हो गया पर मिनट, इतना वॉल्यूम आपका जो वायर का है वो फीड हो रहा है। ठीक है, अब ये जो वायर फीड हो रहा है, द वायर विच इज फीडिंग विल गेट डिपॉजिटेड ओवर योर वर्क पीस। ओके, तो मेल्ट होगा और आपके वर्क पीस पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, एंड डिपोजिशन का स्पीड क्या है, वेल्डिंग स्पीड, जिस स्पीड से वेल्डिंग हो रही है उसी स्पीड से मतलब डिपोजिशन भी होगा। तो वेल्डिंग स्पीड इज गिवन बाय दिस 18 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी में लिखेंगे, तो 180 पर मिनट है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इधर वाला भी पर मिनट ही था। नाउ अब हमें एरिया पूछ रखा है, तो भाई वॉल्यूम इधर था, वॉल्यूम इधर भी होना चाहिए। लेंथ आपने लिख ही दिया, तो एरिया मान लीजिए ए है। ठीक है, ये आपका बेड एरिया है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा भाई कितना एरिया आ रहा है। तो फिर से इसको कैलकुलेशन करिए। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, तो जो कि आप गेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट में आपका जो कैलसी आता है गेट वाला कैलकुलेटर, तो उसको आप अपने फोन में पहले तो उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। So gate calculator, if you search in Play Store, you will find gate calculator. So install that calculator and try to solve all these numericals on that calculator only. And because of this is the only way to get practice over that calculator. यही एक तरीका है जिससे आपको प्रैक्टिस हो पाएगी, नहीं तो एट द एंड क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो आपको प्रैक्टिस में लाना है कि कैसे उस कैलकुलेटर को इफेक्टिवली यूज करें। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यू नीड टू सॉल्व दिस। देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है। सो ए की वैल्यू जो आ रही है 25.13 mm²। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट जो पार्ट आता है, नेक्स्ट टाइप जो आता है आपके आर्क वेल्डिंग का, दैट इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो जैसा इसका नाम है ना, सबमर्ज्ड, यहाँ पे आर्क सबमर्ज्ड ही होता है। अभी आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो समझ, ये भी एक तरीके से आपका आर्क वेल्डिंग की प्रोसेस है, और इसमें भी आपका फ्यूजन होता है, आर्क से फ्यूजन होता है, ये चीज कॉमन रहेगी आगे। और यहाँ पर भी आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। ठीक है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यहाँ पे भी यूज होता है, और वायर फीडर के थ्रू उसको भी हम यहाँ फीड करते हैं। ओके, और इसको समर्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि the arc at the end of electrode and molten pool remain completely hidden and are invisible, being submerged under the blanket of granular flux। तो फ्लक्स, ग्रैनुलर फ्लक्स यहाँ पर यूज करते हैं। अभी आगे हम इस चीज को देखेंगे। सो ग्रैनुलर फ्लक्स, पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए वेल्डिंग करनी है और ये ज्यादा थोड़ा थिक वर्क पीस के लिए यूज होता है।
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वहां पर ग्रेनुलर फ्लक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे आपका इलेक्ट्रोड है, उससे पहले वहां पे ग्रेनुलर फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, जो आपका जब वहां पर जो इलेक्ट्रोड है वो आर्क जनरेट होगा और ग्रेनुलर फ्लक्स वहां पे ऊपर अधेर होता जाएगा, ठीक है। तो मेल्ट जो ग्रेनुलर फ्लक्स है और जो आपका आर्क जनरेशन है, उस ग्रेनुलर फ्लक्स उस आर्क को ढक लेता है। वो आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे तो हमें क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर थोड़ा आप देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो पूरे स्क्रीन पे दिखेगा ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। सो दिस इज योर, ये आपका डायरेक्शन देखिए इधर, दिस इज योर वेल्डिंग डायरेक्शन टुवर्ड राइट साइड, आपके राइट साइड में वेल्डिंग डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका फीड हो रहा है, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपका जो फ्लक्स है वो यहाँ पे फीड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स है, ग्रैनुलर फ्लक्स, उसकी फीडिंग यहाँ से हो रही है। एंड दिस इज योर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जो ऊपर से यहाँ पे रोलर के थ्रू ये यहाँ से फीड हो रहा है। अब देखिए फ्लक्स यहाँ पर आया, फ्लक्स पूरा इलेक्ट्रोड को देखिए कवर किए हुआ है, द होल फ्लक्स इज कवरिंग द इलेक्ट्रोड। नाउ आर्क विल बी प्रोड्यूस बिटवीन दिस वर्क पीस, और यहाँ पर फ्लक्स ऊपर से पूरा ढका हुआ है। देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर मेल्टिंग होगी। मेल्टिंग किसकी किसकी होगी, आपका ये जो आपका जो ये वायर है वो तो मेल्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो ये ग्रेनुलर फ्लक्स है वो भी फ्यूज होगा, ठीक है। सो होगा क्या कि, और ऊपर वाला कुछ पोर्शन है वो अनफ्यूज होगा, बीच वाला फ्यूज होगा। सो दो लेयर बन जाएंगे, एक कंफ्यूज लेयर बन जाएगा जो सबसे ऊपर है, जो यहाँ पे लिखा है अनयूज फ्लक्स, वो फ्यूज नहीं हुआ है, वो सॉलिड फॉर्म में ही है, ओके। एंड उसके बाद जो नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आया, दैट इज मोल्टेन फ्लक्स, जो कि फ्यूज हो चुका है, दैट इज मोल्टेन फ्लक्स, जिसको आप यहाँ पे स्लग बोल रहे हो। एंड उसके नीचे क्या है, आपका सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल है, जो यहाँ पर आपका फीडर है, जो आपको सॉरी जो फीड वायर यूज कर रहे हो, वो जब वेल्डिंग आगे जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो सॉलिडिफाई होता जाएगा। और थोड़ा सा आगे देखेंगे इलेक्ट्रोड के नियर बाई वाला जो एरिया है, वहां पे अभी भी जो ये वायर है वो अभी मोल्टन स्टेट में है, नीचे जो फीडेड वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आर्क इज टोटली सबमर्ज अंडर द फ्लक्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो ये आपका है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिक फीचर क्या है इसका, कि आर्क जो पूरा है सबमर्ज होता है, और आर्क सबमर्ज होने की वजह से जो आपका ऊपर आपने देखा ना, ग्रेनुलर फ्लक्स पूरे आपके मोल्टन पूल को एकदम कवर किए पड़ा है, तो हीट लॉस तो होगा ही नहीं। योर ग्रेनुलर फ्लक्स यूज टू वर्क एज अ ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट के तरीके से ये मोल्टन जो मेटल है उसको पूरा ऊपर से पूल को कवर किए रहता है, एंड दैट्स व्हाई थर्मल एफिशिएंसी इज वेरी हाई इन समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, नियर सॉरी 80 to 90%, ठीक है। और यहाँ पर कोई विजिबल लाइट, अब जब ढका हुआ है तो विजिबल लाइट कहाँ से मिलेगा आपको, वेल्डिंग स्पेटर फ्री, कोई कवर है पूरा, ठीक है। हाई डिपोजिशन रेट है, डाउन हेड वेल्डिंग प्रोसेस है, इसको आप वर्टिकल वेल्डिंग और दूसरे वेल्डिंग क्या बोलते हैं डायरेक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी यूज ग्रेनुलर फ्लक्स हियर, तो पॉसिबल नहीं है वो वर्टिकल और डाउन हेड वेल्डिंग प्रोवाइड करना, ओके। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। So in submerged arc process, instead of flux covered electrode, granular flux and bare electrode is used. What happens in case of your submerged metal arc welding, we use electrode, ठीक है। स्टिक वेल्डिंग जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हो, इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स कवर होता है। बट इन केस ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग देयर इज नो सच इलेक्ट्रोड इज यूज, हियर वी यूज सेपरेट ग्रेनुलर फ्लक्स एंड बेयर इलेक्ट्रोड इज यूज, फीडर जो आप कहते हो, ओके। आर्क इज जनरली स्टार्ट बाय स्टील। अब यहाँ पर अब प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो आर्क कैसे स्टार्ट होगा ये भी हमें देखना होगा। तो आर्क कैसे स्टार्ट करते हैं, हम स्टील पूल यूज करते हैं, जनरली वी यूज स्टील वूल, मतलब एक तरीके से लेट्स से दिस इज योर इलेक्ट्रोड एंड दिस इज योर वर्कपीस, सो इन बिटवीन वी यूज वूल ऑफ स्टील, ओके। स्टील वायर का वूल होता है, एंड दैट इज बेसिकली यूज टू इनिशिएट द आर्क बिटवीन दिस टू, okay. This is the process basically. So arc is generally start by steel wool method, where the steel wool kept pressed between your electrode and the jaw. When the welding current is switched on, steel wool provides a conductive path for the arc to establish, ठीक है। और आपका अगेन फ्लक्स सर्व्स एज ए सील्डिंग मीडियम, जो मैंने आपको बताया, एंड प्रोसेस मे बी सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक, ओके। नाउ अगेन इन दिस स्लाइड द वर्किंग इज एक्सप्लेन्ड, किस तरीके से वर्किंग होती है, ये सारी चीजें यहाँ बताई हुई हैं।
तो फ्लक्स आपका डायरेक्टली यहाँ पे फीड होता है विद द हेल्प ऑफ हुपर। तो ये राइट साइड में जो ये पोर्शन इसी को हुपर बोलते हैं, यहाँ से आपका फ्लक्स फीड हो रहा है। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है कैसे होता है, ऊपर अनफ्यूज फ्लक्स क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो वही चीज यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। What happens, your slag is basically the density of slag is less as compared to your this molten metal. That's why your slag is floating over this uh, molten molten metal. तो slag आपका ऊपर फ्लोट करता है। और एक चीज और करता है, ये इम्प्योरिटीज को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है और इम्प्योरिटीज आपके ऊपर इकट्ठा होता है। तो एक तरीके से ये भी थोड़ा सा फायदेमंद प्रोसेस होता है कि इम्प्योरिटीज आपको खुद ब खुद ऊपर आ गई है। ओके, वही लिखा है यहाँ पे, इट ऑल्सो डिजोल्व्स इम्प्योरिटीज इन द बेस मेटल एंड इलेक्ट्रोड्स एंड फ्लोट्स देम अप टू द सरफेस। ठीक है, उसको आप बाद में इजीली हटा सकते हैं। स्लोअर कूलिंग रेट होने की वजह से क्या होता है, आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी वगैरह है, वो अच्छी होती है यहाँ पे। ओके, सो नाउ यहाँ पर भी वेल्डिंग करंट, पोलैरिटी, वोल्टेज, वेल्डिंग स्पीड, ये तो देखिए मैं बताया था, ये आपका कॉमन रहेगा। वेल्डिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोड भी, वायर फीड, तो जो भी यहाँ पर पैरामीटर्स है जो वेरी हो रहे हैं, चेंज हो सकते हैं, दैट इज योर ऑपरेटिंग वेरिएबल, जिसका इफेक्ट पड़ता है आपके वेल्ड पे। ठीक है, अब तक तो आपको ये चीज याद हो गया होगा। Okay. Here also we use DCP mode. Constant voltage power supply being self-regulating is used with a constant speed wire feeder normally in a DCP mode. ठीक है, DCP means DC electrode positive. Okay. So now flux. फ्लक्स क्या होता है यहाँ पे, फ्लक्स यहाँ पर फ्लक्स के बारे में हमने चीजें पहले डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लक्स का क्या रूल है वो हमें थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर जो फ्लक्स है वो एक तरीके से आपको स्टेबिलिटी देती है, बाकी हर जगह जहाँ भी यूज होता है ये इसका फ्लक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। एंड आपका यहाँ पे जो आपका समर रॉक बिल्डिंग है, यहाँ पर फ्लक्स एक तरीके से सील एज अ सील्डिंग काम करता है। एज अ सील्डिंग काम करने की वजह से क्या है, जो कूलिंग रेट है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है, और इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज है, डक्टिलिटी वगैरह, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ओके, नाउ ग्रेनुलर यहाँ पर जो फ्लक्स होता है उसके कंपोजिशन क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और टू टाइप्स ऑफ फ्लक्स बेसिकली यूज होते हैं, एक बॉन्डेड फ्लक्स, एक फ्यूज फ्लक्स। तो इसको बॉन्डेड फ्लक्स और फ्यूज फ्लक्स दोनों को अलग अलग बनाने का तरीका होता है। फ्यूज फ्लक्स में मतलब आप जो कंपोनेंट है उसको फ्यूज वे में मिक्स करके बनाते हैं, और बॉन्डेड वे में जो फ्लक्स का कॉम्पोजिशन होता है वो फॉर्मुलेट होता है। इनके बारे में डिटेल में जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वी नीड टू जस्ट नो दैट द फंक्शन ऑफ दिस फ्लक्स, क्योंकि सील्डिंग के अलावा और क्या फंक्शन होता है हमें इतना बस जरूर जानना है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लक्स। अब थोड़ा सा हम एडवांटेज वाला पार्ट देख लेते हैं। तो एडवांटेज वाले पार्ट में अगर आप देखें तो दिस गिव्स कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी वेल्ड विद मिनिमम ऑपरेटर स्किल। तो क्वालिटी वेल्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि सील्डिंग वगैरह यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी विल बी गुड। ओके, molten flux provides very suitable condition for high current to flow. Okay, now minimum of welding fume and arc visibility, क्योंकि आपका पूरा आर्क जो है वो कवर्ड है, सो रेडिएशन विल बी वेरी लेस। ओके, वेल सूटेड टू डू वेल्डिंग ऑफ थिक सेक्शन, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, डिपोजिशन रेट हाई है तो आप थिक पोर्शन को आराम से यहाँ पर कर सकते हैं वेल्ड। डिफेक्ट फ्री वेल्ड होगा, जब कवर ही है तो डिफेक्ट जो इन्वायरमेंट के गैस में इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो डिफेक्ट यहाँ पर कम होंगे। देर इज नो इफेक्ट ऑफ विंड हियर, हाई विंड का कोई इफेक्ट नहीं है, पूरा ऊपर से कवर होता है। उसके बाद बिकॉज ऑफ हाई हीट कंसेंट्रेशन, कंसिडरेबली हायर वेल्डिंग स्पीड कैन बी यूज ऑल्सो, रिलेटिवली हाई मेटल डिपॉजिशन रेट। तो दीज आर द एडवांटेजेस जो ऑलरेडी हम पहले जब हम गो थ्रू कर रहे थे इस प्रोसेस में तो हमने देख लिया। नाउ सम डिसएडवांटेजेस आल्सो देयर। जो डिसएडवांटेजेस होते हैं कुछ प्रोसेस में वो यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से हैं कि वेल में कंटेन स्लैग इंक्लूजन, तो वी आर यूजिंग ग्रैनुलर फ्लक्स, तो प्रॉब्लम हो सकती है, स्लैग इंक्लूजन हो सकता है यहाँ पे। एंड द थिंग इज, इसको आप हर पोजीशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ओवरहेड एंड वर्टिकल के लिए वी कांट यूज दिस समझ आप वेल्डिंग प्रोसेस। और यहाँ पर स्मॉल थिकनेस के लिए प्रॉब्लम होती है, जो कि यहाँ पर हमें समझ में आता है, ज़्यादा डिपोजिशन रेट है। ओके, and weld metal chemistry is difficult to control. A change in welding variable, especially when using alloyed flux, may affect weld metal composition adversely, क्योंकि फ्यू जो मेटल है, जो आपके फ्लक्स है, पूरा कवर कर रहा है मोल्टेन फूल को मेटल के। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, जो भी हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं दैट शुड बी कंपोजिशन उनका प्रॉपर होना चाहिए। ओके, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम एलॉय, मैग्नीशियम एलॉय, पीवी जिंक कैन नॉट बी वेल्डेड। ठीक है, तो ये रिएक्टिव मेटल जो होते हैं इनके लिए ये इतना सुटेबल है। ओके, now what are the applications? So submerged arc welding is widely used for welding carbon manganese alloy and stainless steel.
एंड निकल बेस्ड एलॉय भी यूज होते हैं, और बेसिकली यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ पाइप, प्रेशर वेसल, बॉयलर, जहाँ पे बड़े कंपोनेंट को ज्वाइन करना हो, वाइड सीट्स को ज्वाइन करना हो, सॉरी थिक सीट्स को ज्वाइन करना हो, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को, यूज very so it is widely used in automotive, aviation, shipbuilding, and nuclear power. Okay, so these are the applications. एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये और भी यूज होता है, क्लैडिंग के लिए भी यूज होता है। क्लैडिंग क्या होता है, किसी कोई मेटेलिक बॉडी है जो कि थोड़ा सा प्रोन है करोजन के लिए, so we use less susceptible material over the surface of that metal, तो कि जाके करोजन ना हो। तो वहां पे भी क्लैडिंग का मतलब होता है कि दूसरा लेयर लगाना सरफेस पे, तो उसके लिए भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन रेट जो है वो ज्यादा है। ओके, so this can be done with the help of this process. Okay, now the next arc welding process, which is plasma arc welding process. So plasma क्या होता है, ऑलमोस्ट आपको पता होगा, प्लाज्मा इज नथिंग बट अ पूल ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। तो इनिशियली क्या होता है प्लाज्मा, तो अगर आप देखें तो मोर और लेस सिमिलरिटी है इसमें और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, तो वो सिमिलरिटी हम अभी देखेंगे कि भाई क्या सिमिलरिटी है। सो प्लाज्मा इज जस्ट अ पूल ऑफ आयोनाइज्ड गैस। तो इनिशियली कैसे प्लाज्मा इनिशिएट होता है, कैसे वर्किंग होती है, वो थोड़ा सा एक एक पॉइंट के थ्रू हम गो थ्रू हो लेते हैं, देन वी विल सी द सेटअप। So initially arc is being created between tungsten electrode and workpiece. So ऐसा ही हमारे TIG में भी था। Now plasma gases converts into जो भी वहाँ पे गैस प्रेजेंट है उनको प्लाज्मा गैस बोला गया है, and that gas will get converted into plasma, and the mechanics the physics behind this we have discussed। जब हम फिजिक्स ऑफ आर्क जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है कैथोड से एनोड की ओर, तो वो उनका एक तरीके से इम्पैक्ट, एक तरीके से आपका कोलिजन होता है विद योर गैस मॉलिक्यूल्स एटम्स, और वहां पे हीट ट्रांसफर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आयंस में आयंस का क्रिएशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज एंड प्लाज्मा ऐसे क्रिएट होता है। ये चीज हमने देखा था। ओके, सो द फॉल्ट वेल्डिंग प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा इज अराउंड 11,000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक रखते हैं। वैसे प्लाज्मा का टेम्परेचर तो और ज्यादा हो सकता है, 20,000, बट फॉर वेल्डिंग वी कीप दिस अराउंड 11,000 डिग्री सेल्सियस। Okay, so because of in plasma we have seen that the temperature of plasma is very high. Intense source of heat can be it can be called as a intense source of heat, and because of that the penetration, deep penetration is possible. Okay, यहाँ पे ये चीज है, और जब डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल है तो आपको वेल्डिंग स्पीड भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हीट का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। Okay, and because of your high building speed and intense source of heat, यहाँ पे heat affected zone जो है वो यहाँ पर कम होगा। ठीक है, स्प्रेड कम होगा यहाँ पर हीट का, तो इसके वजह से हीट इफेक्टेड जोन भी कम होगा। ओके, सेपरेट फिलर रॉड यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज योर पावर सोर्स। पावर सोर्स का जो यहाँ पर एक तरीके से वोल्टेज और करंट जो जिस रेंज में यूज होता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एंड देर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। बेसिकली ऐसे जगह पर यूज करते हैं जहाँ पर जो मेटल है जिसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा होती है। स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज के लिए यूज करते हैं। कमर्शियली इट इज यूज इन एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस हो, हर जगह यूज नहीं होता, जहाँ पे ज़्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है, देयर वी यूज प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। Now this is the diagram which I want to show, and I want to show the similarity between this TIG and PAW, means plasma arc welding. So आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो TIG प्रोसेस है इनमें इसमें इलेक्ट्रोड थोड़ा सा आगे निकला हुआ है आपके कॉन्टेक्ट सरफेस से थोड़ा सा आपका, या कॉन्टेक्ट सरफेस बोलो या फिर यहाँ पर इसको वेल्डिंग टॉर्च बोलो, उससे यहाँ पर इलेक्ट्रोड बाहर की ओर, आगे की ओर निकला होता है, और इससे आपका प्लाज्मा क्रिएशन का मौका नहीं मिल पाता है। बट इन केस ऑफ प्लाज्मा वेल्डिंग व्हाट वी डू, यहाँ पर आपका टॉर्च है, ये टॉर्च का टिप है, और इलेक्ट्रोड थोड़ा सा अंदर होता है, एंड देयर आर एम्पल स्पेस मतलब इतना ज्यादा नहीं, mm में ही होता है। सो देर आर स्पेस बिटवीन योर दिस इलेक्ट्रोड टिप, टॉर्च टिप, एंड बिटवीन सरफेस। सो यहाँ पर आपका प्लाज्मा क्रिएशन हो जाता है। ओके, तो ये प्लाज्मा क्रिएशन इस रेंज में होता है, और इस प्लाज्मा क्रिएशन के लिए यहाँ पर गैप थोड़ा सा, इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा अंदर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ सराउंडिंग से आप देख रहे हैं यहाँ पे सीलिंग कैसे जा रहा है।
और यहाँ पर ओरिफिस गैस इन बिटवीन से यहाँ पर आते हैं, और शील्डिंग गैस यहाँ पे सराउंडिंग से आते हैं। ठीक है, तो ये सेटअप है और ये सिमिलरिटी है जो मैंने आपको बताया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन कम होता है क्योंकि इंटेंस हीट यहाँ पर यूज हो रहा है, वेल्डिंग स्पीड ज्यादा होती है। किसी पॉइंट पे आप देखो तो वहाँ पे हीट इंटेंस हीट ज्यादा है तो स्प्रेडिंग कम होगी वहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि हीट इफेक्टेड जोन बाकी जैसे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में बहुत ज्यादा हीट इफेक्टेड जोन होता है। ठीक है, तो उससे कंपेयर में यहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन कम होगा। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आप देख रहे हैं कि डिपोजिशन रेट वहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, मोल्टेन मेटल है और वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, धीरे धीरे स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, हीट ज्यादा आपके जो बेस मेटल है वहां पर ज्यादा स्प्रेड होगा, तो जिसकी वजह से वहां पर हीट इफेक्टेड जोन ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या है कि एक छोटी सी पॉइंट पे आपका प्लाज्मा इम्पैक्ट कर रहा है, जहाँ पर हीट कंसेंट्रेटेड एक पॉइंट पे है और आप तेजी से उस टॉर्च को मूव कर रहे हो, क्योंकि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इम्पैक्ट हो रहा है आपका जहाँ पे हीट इनपुट हो रहा है वर्कपीस पे, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है, तो वहाँ पे इमीडिएटली मेल्ट डाउन होगा आपका फिलर रॉड का जो भी आप यूज कर रहे हो। ओके, या फिर वर्कपीस का। सो इन दैट केस वी विल मूव योर टास्क, वी विल मूव आवर टास्क। तो एक जगह पे आपका नहीं होगा, और वो जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से जो टाइम है हीट को बाहर सरफेस पे जाने के लिए वो उतना नहीं मिलेगा इन केस ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, तो हीट इफेक्टिव जोन यहाँ पर कम होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस का पहले सेटअप समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन माना जाता है कि आपका आर्क रेजिस्टेंस वेल्डिंग और थोड़ा सा आर्क वेल्डिंग का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ये बेसिकली वहां पर यूज होता है जहां पर आपको सरफेस टू सरफेस बाइंड करना हो दो किसी कंपोनेंट को, वहां पे बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज द सेटअप ऑफ योर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, एंड वी वांट टू ज्वाइन दिस। सो इन बिटवीन अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप है यहाँ पे। सो ये दो सरफेस को आपको जोड़ना है, तो यू कंबाइन दिस टू सरफेसेस एंड दिस इज द सेटअप। तो आप बेस से स्टार्ट करते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपका एक तो पहले यहाँ पर स्टार्ट प्लेट होता है, एक सबसे नीचे यहाँ पे एक स्टार्ट प्लेट होता है जो कि कॉपर का स्टार्ट प्लेट होगा। ठीक है, स्टार्ट प्लेट, और उसके बाद यहाँ पर स्लैग होगा। तो यहाँ पर स्लैग जो भी आप सॉरी स्लैग कह रहा हूँ, जो फ्लक्स वगैरह है वो यहाँ पर फील्ड होगा। ओके, यहाँ पर फ्लक्स फील्ड होगा, और इसके बाद फ्लक्स फील्ड होने के बाद आप यहाँ पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, वी यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। एंड नाउ वी कंप्लीट द सर्किट। तो व्हाट हैपेंस, जो यहाँ पर यहाँ पर जो फ्लक्स वगैरह यूज करते हैं वो उनकी कंडक्टिविटी काफी पुअर होती है, उनकी कंडक्टिविटी काफी पुअर होती है। तो व्हाट हैपेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, और एक सर्टेन पॉइंट पे जब आपका यहाँ पर आग जनरेशन होता है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी रोल है और आग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो तो है ही। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बोला जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आग वाला मैकेनिज्म भी है और रेजिस्टेंस वाला भी मैकेनिज्म है वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब जब आप पावर कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट करोगे, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक तरीके से आर्क जनरेशन स्टार्ट होगा। तो जो भी आपने यहाँ पर बीच में फ्लक्स वगैरह आपने भर रखा है, मेल्ट डाउन विल स्टार्ट and the temperature will increase, and because of high temperature melt down, the consumable electrode will start melting and जो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसको ऊपर की ओर यहाँ पर जो वेल्डिंग डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि हमको सरफेस से सरफेस ज्वाइन करना है। ठीक है, अब ये वेल्डिंग डायरेक्शन ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी और आपका जो नीचे के धीरे से नीचे से आपका यहाँ पर वेल्डिंग सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता चला जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो यहाँ पर मोल्टेन पूल है, मोल्टेन पूल होगा जिसमें ऊपर स्लैग होगा, नीचे आपका ये मोल्टेन मेटल होंगे, उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, और उस इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि आपका जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है वो विदाउट स्पार्क, जो ये मोल्टेन पूल है वही जो आपके स्पार्क को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, विदाउट without using any spark, any external source. This molten slag start consuming this electron, क्योंकि अब काफी हीट अगर ज्यादा है वहां पे ऑलरेडी मोल्टेन मेटल का, तो क्या करेगा वो रॉड रॉड अपने आप पिघलना शुरू हो जाएगा। ओके, सो एट दैट पॉइंट व्हाट वी स्टॉप दिस पावर सप्लाई एंड यहाँ पर सेल्फ कंज्यूमेशन, एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल्फ वे में कंजप्शन स्टार्ट हो गया आपके मोल्टेन मेटल का, या फिर कह सकते हो मोल्टेन मेटल का नहीं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का। डायरेक्शन यही ऊपर की ओर होगा। अब एक टाइम के बाद आपका जब मोल्टेन पूल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, कंज्यूमेबल नहीं हो रहा था, अगर हम पावर सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में आपका प्रॉपर जो वेल्डिंग है वो हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे स्लैग का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्लैग भी आपका हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने, ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग भी बोला जाता है, ही बोला जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। इनिशियली द आर्क इज बीइंग क्रिएटेड बिटवीन योर स्टार्टिंग ब्लॉक जो मैंने आपको बताया कि नीचे एकदम बॉटम सरफेस में यहाँ पे कॉपर का लगा होता है। ओके, तो स्टार्टिंग ब्लॉक, और यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पे एक ये कॉपर कूल्ड वाटर कूल्ड कॉपर डैम प्लेट रखा हुआ है, कि अगर ये नहीं रखेंगे प्लेट, तो आपका जो मोल्टेन यहाँ पे मेटल है वो यहाँ से दाएं से आगे निकल जाएगा, इधर बाएं से आगे निकल जाएगा। सो उसको स्टोर तो रखना पड़ेगा ना। सो फॉर दैट वी यूज अ प्लेट, एंड दिस प्लेट इज बेसिकली मेड ऑफ कॉपर, एंड टू कूल डाउन दिस प्लेट, अब यही इसको तो मेल्ट नहीं कर देना है ना हमको, तो इसी के बीच में वाटर का सप्लाई करते हैं, जिससे कि ये प्लेट थोड़ा सा ठंडा है पिघले। ओके, नाउ दिस पॉइंट, तो यहाँ पर क्या है, इनिशियली द आर्क इज बीइंग क्रिएटेड बिटवीन स्टार्टिंग ब्लॉक एंड योर इलेक्ट्रोड, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो एक बार आपका स्टार्ट हो गया, क्या बोलते हैं, आर्क स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर्क स्टार्ट जैसे ही आपका आर्क स्टार्ट होता है, उसी समय आपके यहाँ पे फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, फ्लक्स अगर पहले फ्लक्स की जो फ्लक्स का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, अगर फ्लक्स को हम पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आर्क का इनिशिएशन होगा नहीं। ओके, सो पहले हम यहाँ पर जो नीचे कॉन्टेक्ट प्लेट है, वी जस्ट स्टार्टिंग प्लेट, वी कॉल दिस स्टार्टिंग प्लेट। So first of all, we start arc with the help of this starting plate. Then we introduce flux. Then we introduce what? Flux. And after introduction of flux, what happens? Flux starts melt down also along with your electron. Okay. So welding process in vertical direction, and due to the that temperature, molten pool keeps on increasing. ठीक है, तो molten pool आपको ऊपर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि welding ऊपर की ओर हो रही है। Once the temperature of molten pool reaches a particular value, arc is switched off, and molten metal is so hot that it starts consuming the wire without arc. यही चीज है आपको बताना। Okay. The point when molten metal is not able to consume any more wire, arc is restarted again. ठीक है, this process is used to join two thick plate along the edges. जो ये आपका surface है उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, the major application is in ship building and fabrication of press frames, जहाँ पे आपको SOS ज्वाइनिंग की जरूरत होती है। तो आपको इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दो ही रोल आ रहा है, एक तो आर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है ना, वो भी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है टेम्परेचर को रेज करने के लिए। ओके, तो आपका फ्लक्स का जो रेजिस्टेंस, यहाँ पे फ्लक्स की रेजिस्टिविटी तो थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जैसे हमने देखा था, आर्क वेल्डिंग में सारे प्रोसेस लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर था, वैसे ही स्पॉट वेल्डिंग में भी होगा। अभी क्या है कि मैंने जो भी यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस आपको बताए हैं, जैसे अभी एमआईजी बताया, समर आर्क वेल्डिंग में, समर आर्क वेल्डिंग में भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल पार्ट अभी हमें कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ यू से वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग प्रोसेस एक बार हम कवर कर लेते हैं जल्दी से इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में, ताकि हम फ्री होके पूरा फोकस अपना क्वेश्चन पे लगाएं, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो वो सारा हम एक लेक्चर में डिस्कस करके सॉल्व करें। ठीक है, तो पहले एक बार सारे प्रोसेस अगर गुजर लेंगे, तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे हमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पूरा अभी इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जितने रिमेनिंग पार्ट है, जो डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस है, उसको जल्दी से जल्दी एक बार कवर कर लिया जाए। तो ना वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, तो स्पॉट वेल्डिंग जैसा नाम है वैसा ही काम है। ओके, कोई स्पॉट है इसमें, देखो जैसे ये आपका सेटअप है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, ऊपर का इलेक्ट्रोड है, ये नीचे का इलेक्ट्रोड है, एंड ये दो आपके पीस है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर दो प्लेट को यहाँ कांटेक्ट करोगे, तो सबसे, और जब यहाँ पे एक तरीके से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड को और ये आपका सर्किट कंप्लीट करोगे, तो होगा क्या, करंट यहाँ से फ्लो करेगी थ्रू दिस प्लेट। अब ये जो बीच में जो कांटेक्ट सरफेस आ जाता है, बीच में जो कांटेक्ट सरफेस आ जाता है, वहां पर हल्का सा तो एयर गैप रहेगा ही, और बिकॉज ऑफ दैट एयर गैप इस सरफेस पे, सरफेस का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। और हमें पता है भाई फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा इस सरफेस होगा, तो सबसे ज्यादा हीट भी यहीं प्रोड्यूस होगा, एंड बिकॉज ऑफ द हीट, जो आपका ये जो सरफेस है, यहीं पे फ्यूजन स्टार्ट होता है, यहीं से, यहीं पे और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग को आगे परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम बात करें स्पॉट वेल्डिंग की। तो स्पॉट वेल्डिंग का सेटअप क्या होता है, सिंपल दो सिलिंड्रिकल यहाँ पर इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि आपके यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होते हैं, उनको करंट के साथ साथ उस पर थोड़ा सा प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। ओके, सो ये आपका हो गया सिस्टम स्पॉट वेल्डिंग। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, और स्पॉट मतलब क्या,
एक तरीके से एक पॉइंट वाइज पॉइंट नुमा यहाँ पर ज्वाइंट होगा। दिस इज लाइक अ स्पॉट ना, दिस इज लाइक अ स्पॉट। एक नगेट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा, पावर अप, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हुआ और आप यहाँ से प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हो, सो आफ्टर फ्यूजन a nugget will form, and this after solidification this joining will happen, and this kind of joining is known as your spot welding process। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पॉट फॉर्म बनाने के लिए, स्पॉट एक तरीके से स्पॉट वेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोड है, पीस है, वर्क पीस है। नाउ वी यूज दिस काइंड ऑफ प्रेशर अरेंजमेंट फॉर मेकिंग स्पॉट वेल्डिंग पॉसिबल। सो यहाँ पर एस क्या है? एस फॉर स्टार्टिंग, जो आपका एक तरीके से स्टार्टिंग पोर्शन है, जब आप इलेक्ट्रोड को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो, पावर सप्लाई स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप ऐसे प्रेशर एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड डब्ल्यू इज फॉर योर वेल्ड। सो फॉर दिस टाइम, और ये आपका जो है ये हॉरिजॉन्टल एक तरीके से कह सकते हो, ये टाइम। ठीक है, एंड फिर आपका एक तरीके से आपने स्टार्टिंग में यहाँ से आपने करंट स्टार्ट करा, और यहाँ पर एक पॉइंट के बाद आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है जब यहाँ पर वेल्डिंग स्टार्ट होती है, जब यहाँ पर एक तरीके से फ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सारा कुछ टाइमिंग फिक्स है यहाँ पे। Okay, and after this fusion we start we a little we increase the pressure ज्वाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा प्रेशर हम यहाँ इंक्रीज कर देते हैं, और ये इस हाई इंक्रीज प्रेशर पे हम जो आपका ये वेल्ड सीट है और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको होल्ड रखते हैं। तो एज फॉर होल्ड, एज यहाँ पर जो है वो होल्ड को बता रहा है कि इस पोजिशन पे आप उसको होल्ड करके रखते हो, और इस तरीके से थोड़ा प्रेशर एक लिमिट तक बढ़ाएंगे, उसके बाद प्रेशर को हम कम करते चले जाते हैं। ठीक है, होल्ड करने के बाद अब क्या है, अब आपको प्रेशर रिलीज करना है, क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो नगेट फॉर्मेशन है, जो यहाँ पे नगेट फॉर्मेशन का सॉलिडिफिकेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप एक तरीके से ऑफ करोगे, जो आपको जो प्रेशर आपने अप्लाई करा था उसको रिलीज करोगे, एंड इन दिस वे द स्मॉट इज फॉर्म। ओके, जनरली जो यहाँ पर नगेट फॉर्मुलेशन होता है, जो यहाँ पर नगेट जो फॉर्म होता है उसका अगर डाया की आप बात करोगे तो डाया कुछ इस रेंज में आता है, 6 अंडर रूट टी, जहाँ पर टी जो है आपकी इंडिविजुअल सीट की थिकनेस है। ठीक है, नाउ इफ अब यहाँ पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं नगेट पे, फिर मेल्ट इफिशियंसी सॉरी वेल्डिंग इफिशियंसी पे बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं स्पॉट वेल्डिंग पे, जो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमको नगेट का वॉल्यूम, नगेट का एरिया, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो फॉर दैट वी नीड टू नो द डाया ऑफ नगेट। तो डाया ऑफ नगेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ नगेट कैसे निकालेंगे, और ये नगेट हम सिलिंड्रिकल मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो इलेक्ट्रोड वगैरह वो भी सिलिंड्रिकल ही है। तो होता क्या है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब प्रेशर हम सीट पे अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर इंडेंटेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई चीज आप दबाओगे तो थोड़ा सा कुछ पोर्शन तो दब जाएगा ना, तो जो दबा हुआ पोर्शन है उसको इंडेंटेड पोर्शन बोलते हैं। तो एक्चुअल अगर आपको हाइट पता करना है नगेट का, तो हमको वो इंडेंटेड जो पोर्शन है ना वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस टोटल थिकनेस से, और ये टोटल थिकनेस कितना होगा, 2t। ठीक है, इस वाले सीट का अगर थिकनेस टी है और इस वाले सीट का भी थिकनेस टी है, मान लेते हैं दोनों का थिकनेस बराबर ही है, तो टोटल थिकनेस 2t हो जाएगा। एंड नाउ वी वांट टू नो द एक्चुअल हाइट ऑफ दिस नगेट। तो कितना ये इलेक्ट्रोड दबा दिया है इस सरफेस को, अगर वो हम हटा दें तो एक्चुअल हाइट ऑफ नगेट की मिल जाएगी, और वो जो दबा हुआ पोर्शन है उसी को इंडेंटेड पोर्शन बोलते हैं। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस इंडेंटेड पोर्शन, यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप। ओके, तो ये इंडेंटेड मतलब एक तरीके डेंट पड़ गया ना, डेंट जो बोलते हैं। So we need to subtract that portion. So in numerical this thing is given, will given, will be given कि भाई इंडेंटेशन कितना है ये बता दिया जाएगा। तो एक्चुअल जो हाइट होगा नगेट का वो होगा 2 टाइम्स टी माइनस दिस इंडेंटेशन, क्योंकि इंडेंटेशन ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो इसलिए इसको भी 2 टाइम घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पॉट बिल्डिंग। स्पॉट बिल्डिंग में अब यहाँ पर आपको इसमें इसके लिए किस टाइप का पावर सोर्स होना चाहिए। तो पावर सोर्स में आपको लो वोल्टेज और हाई करंट यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेल्ट डाउन करना है, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पर इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर मेल्टिंग हो सके। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा करंट की जरूरत होती है। तो इतना अमाउंट ऑफ करंट, और लगभग मतलब 10,000 से ज्यादा ही हम यूज करते हैं स्पॉट वेल्डिंग में। एंड वोल्टेज रेंज कुछ ऐसा होता है, और इतने सेकंड के लिए आप यहाँ पर पावर सप्लाई करते हो। ठीक है, सो यूज फॉर थिन सेट, यहाँ पर थिन सेट की यूज होता है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा, और रेफ्रिजरेटर के सीट्स वगैरह जो ज्वाइन होते हैं पीछे सॉरी, उनके लिए स्पॉट वेल्डिंग का एप्लीकेशन ज्यादा होता है। तो ये था आपका स्पॉट वेल्डिंग, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग मोर और लेस आगे हम देखते जाएंगे, सब एक एक दूसरे से सिमिलर ही हो जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होता है।
सकता है। ये भी एक तरीके से आपका कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बिल्डिंग प्रोजेक्ट, सॉरी, स्पॉट बिल्डिंग जैसा ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले हमारे पास प्रोजेक्शन हम बना देते हैं अलग अलग स्पॉट के लिए। सो वी मेक प्रोजेक्शन, ओके, वी मेक प्रोजेक्शन लाइक दिस। एक प्रोजेक्शन यहाँ बना लिया, एक प्रोजेक्शन यहाँ बना लिया, ओके। सो अब प्रोजेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो आपका जो एरिया है जहां पर आपको नगेट फॉर्मुलेट करना है, जहां पर आपको ज्वाइनिंग करनी है, वहां पर आपका जो एक तरीके से स्पॉट जो है वो प्री डिटरमाइंड हो जाएगा। यू आर फॉर्मिंग दिस प्रोजेक्शन हियर। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, कॉन्टेक्ट यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, कॉन्टेक्ट यहाँ पर हो रहा है, तो मेल्टिंग भी यहीं पर होगी और इसलिए ज्वाइनिंग भी यहीं पर होगी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज अनदर वेरिएशन ऑफ योर स्पॉट वेल्डिंग ओनली, sorry, where one of the sheet to be joined is provided with a number of projection to help localize the current at a predetermined spot। अब ये यहाँ पर पहले कांटेक्ट में आएगा, ये सरफेस जो प्रोजेक्शन वाला है, और दो सरफेस पहले कांटेक्ट में आएगा, करंट उसी पॉइंट के थ्रू फ्लो करेगा। So current will flow through this point and through this point, and again at the contact surface the resistance will be high, and because of that high resistance melting will happen over this surface, over this point, over this point, ठीक है। तो आपके दो तीन जितने आपने प्रोजेक्शन बनाए हैं उतने स्पॉट बन जाएंगे, ठीक है। And because of your localization being achieved by use of projection, it is no more necessary to use a small size electrode, ठीक है। पहले हमारे स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता था, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर नगेट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या है, हमने प्रोजेक्शन ही बना दिया है, तो आप फ्लैट इलेक्ट्रोड यूज कर लो, प्रोजेक्शन ऑलरेडी बना ही दिया है आपने वहां पर स्पॉट बनाने के लिए, तो आपको एक सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप फ्लैट इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब फ्लैट इलेक्ट्रोड यूज करने का बेनिफिट क्या है, पहले आप सिलिंड्रिकल और स्मॉल साइज इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे तो उसके डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है, बट इन केस ऑफ फ्लैट इलेक्ट्रोड डैमेज होने का चांस कम हो जाएगा और आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके सेटअप की। तो ये एक तरीके से एडवांटेज हो जाता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग का, राइट। सो एज योर वेल्डिंग करंट पासेस थ्रू दिस प्रोजेक्शन दे सॉफ्टन, get melted and fusion joint is made under the pressure applied from the electrode। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोड है, एकदम सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म है, ज्यादा एरिया है, फोर्स अप्लाई करोगे डैमेज कम से कम होगा। कहाँ यूज होता है ये, बेसिकली यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ थ्रेडेड स्क्रू नट्स टू सीट मेटल। थ्रेडेड स्क्रू है या फिर नट है जो आपको सीट वगैरह में जोड़ना है, तो वहां पर प्रोजेक्शन वेल्डिंग यूज होता है। ग्रिल वगैरह फॉर्मुलेट करना है, वहां पर भी हम और वायर मैसेज वगैरह होते हैं जो आपके कुछ ऐसे होते हैं वायर मैसेज वगैरह जो होते हैं, तो वहां पर अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पर ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से स्पॉट वेल्डिंग का वेरिएशन है। पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट जैसा स्पॉट में मैंने बताया था वही यहाँ पर भी यूज होता है, ठीक है। नाउ सीम वेल्डिंग। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्पॉट वेल्डिंग है और जो ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, इसमें हम एक स्पॉट पे ज्वाइनिंग हो रही है, एक स्पॉट पे ज्वाइनिंग हो रही है, एक नगेट फॉर्मुलेशन हो रहा है, स्पॉट पे ज्वाइनिंग हो रही है, तो ये लीक प्रूफ नहीं है, ओके। ये जो दोनों ज्वाइंट है आपके स्पॉट वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये लीक प्रूफ तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो लीक प्रूफ वेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये लीक प्रूफ वेल्डिंग आपके स्पॉट वेल्डिंग में भी नहीं पॉसिबल है और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आप एक पॉइंट पे ही, एक लोकलाइज पॉइंट पे ही यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। अब हम इस चीज को अगर हटाना चाहते हैं, वी वांट अ काइंड ऑफ वेल्डिंग वेयर वी गेट लीक प्रूफ वेल्डिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आ जाता है सीम वेल्डिंग। अब सीम भी आपका एक अलग टाइप का वेरिएंट है स्पॉट वेल्डिंग का। तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग एक समझ लिया तो बाकी सब ऐसे ही है, और इसको समझना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। आप देखिए कि डायग्राम देख के समझ में आ जा रहा है। So what happens in case of seam welding? This is a continuous formation of a spot. In case of seam welding, we see continuous formation of spot। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो दिस इज योर फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर साइड व्यू। So thin cylindrical electrodes are used in case of seam welding, and this electrode used to rotate. And when this electrode used to rotate, then what will happen? Your continuous spot will create continuous spot will be created over the surface, और इससे आपको लीक प्रूफ ज्वाइन मिलेगा। पहले क्या था स्पॉट वेल्डिंग में, देखिए आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पॉट था, यहीं पे आपका फ्यूजन होता था,
और यहीं पर ज्वाइनिंग होती थी। बट इन केस ऑफ सीम वेल्डिंग कंटिन्यूअस नगेट फॉर्मुलेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस, तो इसलिए सीम वेल्डिंग इज लीक प्रूफ welding process. So it is a specialized process of spot welding. Here the cylindrical electrode are replaced by a disc electrode. ठीक है, तो पहले हम स्पॉट वेल्डिंग में सिलेंडर यूज करते थे, सॉरी सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रोड यूज करते थे। नाउ इन केस ऑफ सीम वेल्डिंग वी यूज डिस्क काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, जो भी यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है। The disc electrode is continuously rotated so that workpiece get advanced underneath them, while at the same time the pressure on the joint is maintained. तो एक तरीके से क्या होगा, प्रेशर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हो और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से इसको रोटेट भी कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो एक स्पॉट बना उसके जस्ट अगले जैसे ही आपका रॉड ये जो इलेक्ट्रोड मूव करेगा, तो करंट जिस पॉइंट पे मूव जो करंट जिस पॉइंट पे पास हो रहा है वो करंट वाला पॉइंट भी आगे मूव करेगा। तो कंटिन्यूअसली एक दूसरा नगेट यहाँ फॉर्म हो जाएगा, फिर करंट वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया जहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है जो कि आपका रोलर और सॉरी इलेक्ट्रोड और वर्कपीस पे, दूसरा नगेट यहाँ फॉर्मुलेट हो जाएगा। तो एक तरीके से देखिए तो आप कंटिन्यूअस नगेट फॉर्म हो रहा है, जिससे कि लीक प्रूफ वेल्डिंग आपको मिल रही है, राइट। The current is applied through the heavy copper electrode in a series of pulse at a proper interval. Proper interval. The timing is adjusted so that the pulse overlap. अब यही जो मैं बात कर रहा हूँ, तो टाइमिंग ऐसा एडजस्ट होता है कि जो भी ये पल्स है, पल्स जैसे जिस तरीके से फॉर्मुलेट होगी उसी हिसाब से यहाँ पे नगेट फॉर्मुलेट होंगे। हमें ऐसा सेटअप करना होता है कि ये जो भी नगेट बन रहे हैं ये कंटिन्यूअस बने और ओवरलैप करें एक दूसरे, ठीक है, जिससे कि कंटिन्यूअस वेल्डिंग होता है। ओके, तो यूज ये कहाँ यूज होता है, ये आपका फ्यूल टैंक वगैरह बनाने में यूज होता है। जैसे फ्यूल टैंक में आपके ये आधा पोर्शन ऐसा है, आधा पोर्शन ऐसा है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या यूज करें, तो इसको जोड़ने के लिए सीम वेल्डिंग यूज कर देते हैं, दोनों को चिपका के ऊपर से सीम वेल्डिंग चला दो, ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइनिंग हो जाती है। तो फ्यूल टैंक वगैरह बन गया आपका, रेडिएटर बॉडीज बनाने के लिए यूज होते हैं, और उसके बाद एग्जॉस्ट पाइप में जो आपका मफलर होता है वो भी आपका सीम वेल्डिंग के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। ओके, सो इन फ्लैश वेल्डिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इन फ्लैश वेल्डिंग व्हाट हैपेंस, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और ये भी प्रोसेस जो बचा हुआ है। So in flash welding, basically this is used for joining end-to-end objects. तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि शेप सर्कुलर ही होना चाहिए, एंड टू एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लैश वेल्डिंग। So in flash welding, one part of your workpiece is fixed and other part of your workpiece is movable, and we use high current through this electrode and through this workpiece. High current यहाँ पर flow होता है, and what happens when we bring this another part close to stationary object or stationary workpiece, so यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर गैप मेंटेन होने की वजह से यहाँ पर करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हाई करंट यहाँ पे यूज करें, करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई करंट डेंसिटी यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर यहाँ पर एक तरीके से फ्लैशिंग फिनोमिना अक्सर होने लगता है, और ये यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से ये सरफेस, दोनों सरफेस मेल्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं और इनके बीच में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से इनको आप क्या कहते हैं, एक तरीके से फ्लैश वेल्डिंग प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लैशिंग फिनोमिना एंड हाई रेजिस्टेंस एंड हाई करंट डेंसिटी, यहाँ पर जो मेल्टिंग हैपन हो रही है, जो यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है दोनों के बीच में, ये होने के दौरान ही हम क्या करते हैं, वी अप्लाई फोर्स, and before applying force, what we do, after getting certain melting point temperature between these two surfaces, जिससे कि यहाँ पर फ्यूजन, प्रॉपर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए, हम पावर ऑफ कर देते हैं, और पावर ऑफ करने के बाद हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं लाइक दिस। एंड जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, ये वाला पोर्शन ऑलरेडी आपका फ्यूज हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, तो मोस्ट ऑफ द जो मेटेलिक पार्ट होगा वो यहाँ पर आगे की ओर फ्लो हो जाएगा एनुलर रीजन, यहाँ पे फिन फॉर्मुलेशन हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो फिन कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन हो जाता है, और इस फिन को फिर हम आगे मशीनिंग के द्वारा इस फिन को हटाते हैं। सो दिस इज योर फ्लैश वेल्डिंग, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो यही चीज यहाँ पर आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। So two workpieces are held together with the help of electrode, and very high current is passed through these electrodes. Momentarily, the two pieces are separated to create the arc to melt, and at the end of the two pieces, तो ऐसा इसको arc welding मत समझिएगा। यहाँ पर करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से और रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर एक तरीके से फ्लैशिंग फिनोमेना अकर होता है, जिससे कि यहाँ पर फ्यूजन स्टार्ट होता है। ओके, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, राइट। और ये कहाँ यूज होता है, दिस इज बेसिकली यूज फॉर ज्वाइनिंग एंड
to end object, and the diameter of those objects would be 5 to in between 5 to 25 mm. ठीक है. सो कॉपर स्टील्स, एलॉयड स्टील्स और एल्यूमिनियम स्टील्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं. तो अभी तक आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं. So we have covered all this resistance welding and arc welding process. In next lecture we will start with solid state welding process, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको ट्राई करेंगे कवर करने का. उसके बाद we will cover all previous year questions, numericals जो भी अभी थोड़े से कम क्वेश्चन हुए, सारे क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ताकि अभी पूरा पोर्शन जब कवर हो जाएगा तो एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, एंड we will be able to solve all questions thoroughly, क्योंकि पूरा पोर्शन लगभग कवर हो चुका रहेगा. So क्वेश्चन वाला सेशन भी हमें रखना है. ओके, so thank you all. मिलते हैं नेक्स्ट